Namaskar and good evening to all. A very warm welcome to all our viewers. Welcome to our first episode of the Discovery Lecture Series being organized by the Archaeological Exploration and Excavation Department, Heritage Society, Patna, in collaboration with Bharat Adhyan Kendra, Banaras Hindu University, Varanasi, and Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology of Tilka Manjhi University, Bhagalpur University, Bhagalpur. This session is broadcasted live on Facebook and YouTube channel of Heritage Society, and the session will be also live on the Facebook channel of Bharat Adhyan Kendra, Banaras Hindu University. I request all our viewers to join us and share the live link of this session with your colleagues and peers so that we may reach out to more and more people. Today's session is extremely important. Recently, a very unique and a very important sculpture has been discovered in Bhagalpur, which carries immense archaeological and historical importance. The theme for this discussion in our today's evening session is on the recent discovery of this sculpture in Sakhund, Bhagalpur. Since Heritage Society regularly organizes lectures and discussions on themes relevant to recent trends in history and archaeology, in this series, Heritage Society has now decided to organize a discovery lecture series in which new discoveries in any part of the India will be hosted. In this series, the first episode today will be on the recent discovery in Sahakund, and we are very privileged and very honored to have with us in collaboration with Bharat Adhyan Kendra, Banaras Hindu University, and Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur. Uh, Heritage Society, although regularly organizes all lectures of different categories every weekly lecture series, today we are very privileged that we have also full support from Banaras Hindu University and Bhagalpur University. So it's a distinct. This lecture will be immense important, and we have this central universities, state universities, and think tanks are collaborating all together to on a platform on this digital edition of lecture series, and we are coming all together to discuss on themes that are very relevant to archaeology and history. Today, it's my also distinct honor and privilege to welcome our chairperson for today's evening session, Professor Deembandhu Pandey sir, member of Indian Council for Historical Research, Indian Council for Social Sciences Research, New Delhi. Welcome you, sir. Uh, we have also with us our chief guest, Dr. Bia Mani sir, former Director General, National Museum and Vice Chancellor, National Museum Institute, New Delhi. Dr. Mani has also served in the past as Additional Director General of ASI, New Delhi. I welcome you, sir. We have also the honor to host and welcome our three distinguished speakers for our today's evening session. Dr. Sanjay Kumar Manjul sir, Joint Director General of Archaeological Survey of India, New Delhi. Dr. Umesh Chandra Dwivedi sir, former Director, Directorate of Museums and Archaeology, Bihar. And Dr. Bihari Lal Chaudhary sir, University Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology, Tilka Manjhi, Bhagalpur University, Bhagalpur. I welcome all of our distinguished speakers in our today's evening session. In our today's evening session, the vote of thanks will be delivered by Professor Sadasiv Kumar Dwivedi sir, coordinator of Bharat Adhyan Kendra, Banaras Hindu University, Varanasi. I welcome you, sir. It's my really distinct honor and privilege that we have with us all our speakers, and we have support from Sadasiv Dwivedi sir and Bihari Lal Chaudhary sir, who has come forward, and this lecture without their support and this lecture could have not been organized. So we are really privileged that we have with us all our distinguished speakers and professors who have joined us. Thank you to all our viewers. Please share this live link so that we may reach more and more people. Our session will be live very soon. Thank you to all. Now I request our chairperson, sir, Professor Deembandhu Pandey, sir, to kindly begin and proceed this session. Thank you, sir. जी हाँ, जैसा कि अभी अभी हम सब लोगों को बताया गया है
एक बड़ी ही अद्भुत प्राप्ति भागलपुर के शाहगंज से हुई है और उस पर बहुविध अध्ययन अपनी बातों को समझने समझाने के लिए ये एक बहुत ही सुंदर आयोजन और इतनी हाल की प्राप्त चीज पर, वस्तु पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, जैसा अभी इन्होंने बताया, तो उसके लिए विचार मंथन की एक अच्छी टीम आज हम लोग जुटे हैं और सभी लोग अपने अपने विधा में चरम पर हैं, इसलिए बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे उस बात को ही हम आरंभ करें जिस पर आज का विमर्श होना है। तो आप क्रमशः आरंभ करिए। Thank you, sir. I request Bihari Lal Chaudhary, sir, to kindly begin his presentation. इसको दिखाओ मत, अभी नहीं, जब तक अभी नहीं, अभी क्लियर है ना। सर्वप्रथम इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्गवार डॉक्टर दीनबंधु पांडे जी को प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों का अभिवादन है और माननीय पांडे जी से हिंदी में बोलने की अनुमति के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं। इस शाहकुंड का नाम भले ही आज वहां की खेरी पहाड़ी से प्राप्त लाइफ साइज की खड़ी एक भव्य प्रतिमा के प्राप्त होने से सुर्खियों में आया है, लेकिन सच तो यह है कि भागलपुर और शाहकुंड का नाम इतिहास के पन्नों के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शाहकुंड नामक ऐतिहासिक स्थल भागलपुर से सुल्तानगंज जाने के मार्ग में पड़ने वाले अकबर नगर से 10 किलोमीटर दक्षिण में आबाद है। भागलपुर जिला मुख्यालय से इसका एरियल डिस्टेंस 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा। शाहकुंड में कई पहाड़ियां हैं जिनमें खेरी पहाड़ी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस पहाड़ी और इसके इर्द गिर्द से पत्थर की प्राचीन मूर्तियां, शिवलिंग, अभिलेख और प्राचीन ईंटें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। इसीलिए इस स्थल की पहचान प्राचीन काल के शैव स्थल के रूप में की गई है। खेरी पहाड़ी के शीर्ष पर 22 फीट चौड़े व्यास का 38 फीट गहरा एक पुराना गोलाकार कुआं मिला था जिसकी दीवारें ईंटों की हैं। इस पहाड़ी का दक्षिणी छोर देवी बागेश्वरी की आराधना के लिए सिद्ध पीठ के रूप में लोक विस्तृत रहा है। पहाड़ी के पश्चिम में ब्लैक बसाल्ट की 34 इंच ऊंची 18 इंच चौड़ी चतुर्भुज नरसिंह की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। नरसिंह की प्रतिमा जो आज वहां एक मंदिर में स्थापित है। नरसिंह की एक प्रतिमा सुल्तानगंज की अजगैबी पहाड़ी पर और दूसरी मंदार पर्वत पर चट्टान को तराश कर उकेरी गई है, जो शायद उत्तर गुप्त शासक आदित्य सेन 660 से 680 ईस्वी के समय की है। नरसिंह की इन दोनों प्रतिमाओं के साथ हिरण्यकश्यपु भी है, जबकि खेरी पहाड़ी से प्राप्त नरसिंह प्रतिमा के साथ हिरण्यकश्यपु नहीं है। इसलिए इस प्रतिमा को केवल नरसिंह, खेरी पहाड़ी से जो प्रतिमा पहली वाली प्राप्त हुई है उसको केवल नरसिंह कहा जाता है, क्योंकि उसमें हिरण्यकश्यपु नहीं है।
भागलपुर के सुल्तानगंज से देवघर के रावणेश्वर वैद्यनाथ लिंगार्चन के लिए आज भी बोलबम से गुंजित लाखों तीर्थयात्रियों की यह परंपरा न जाने कितनी पुरानी है। लेकिन 9वीं शताब्दी तक अंग जनपद स्थित गंगा के घाटों पर तांत्रिक अघोरों के साधना स्थलों का डेरा था। इनमें से सुल्तानगंज से मुंगेर के रास्ते में पड़ने वाले एक प्रसिद्ध अघोर स्थल का नाम अब अपभ्रंश रूप में घोरघट हो गया है। अगर अघोर स्थल का नाम घोरघट हो गया है, आजकल घोरघट के नाम से प्रसिद्ध है। इसी समय अंग जनपद में बौद्धों की तांत्रिक शाखा से फूट कर बनी सहज यानी नाथपंथियों की एक शाखा बनी, एक शाखा अस्तित्व में आई। उनकी वाणियों और षटकर्म से अंग का कोना कोना सिक्त हो गया। षटकर्म को आज भी आम लोगों के बीच अपभ्रंश में खटकर्म, षटकर्म को खटकर्म कहते हैं आजकल। ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन अंग जनपद में यक्ष पूजा का भी प्रचलन रहा होगा, क्योंकि भागलपुर के कुछ स्थलों से यक्ष प्रतिमा की भी प्राप्ति हुई है, जिसे स्थानीय लोग अपभ्रंश रूप में यक्ष बाबा, यक्ष को जख बाबा कहकर पुकारते हैं। यह सर्वविदित है कि पुराने भागलपुर प्रमंडल की पहचान ऐतिहासिक काल के अंग महाजनपद के रूप में की गई है। परंपरागत ऐतिहासिक साक्ष्य अंग की प्राचीनता का संबंध अथर्ववेद से स्थापित करते हैं। पुराणों के अनुसार अंग का नाम हिरण्यकश्यपु के वंशज असुरराज बलि के 5 क्षेत्रज पुत्रों में से एक के नाम पर पड़ा था। बौधायन धर्म सूत्र में अंग और मगध का उल्लेख और पवित्र स्थल के रूप में हुआ है, और अथर्ववेद में यहाँ के वासियों को तिरस्कार पूर्वक व्रात्य कहा गया है, जिसका अपभ्रंश है बातर, व्रात्य का बातर। प्रोफेसर बीपी सिन्हा के अनुसार व्रात्यों को बिहार के ताम्र पाषाणिक लोगों के रूप में पहचाना जा सकता है, जो कदाचित इंडो आर्यंस की एक पुरानी शाखा थी। स्थानीय तत्वों के प्रभाव में आकर वे अपनी भाषा और संस्कृति को भूल चुके थे। इतिहासकारों के अनुसार निम्न गंगा घाटी में स्थित अंग, बंग, कलिंग और मगध का पूरा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण अनार्य स्थल रहा होगा। यदि मधु नामक राक्षस, जिसका संबंध विष्णु या मधुसूदन अर्थात मधु का वध करने वाले से है, तो मधु का निवास मंदार पर्वत में रहा होगा, जिसका उल्लेख पुराणों में आया है। और यदि शंखासुर विष्णु या कृष्ण द्वारा मारा गया था, तो वह शाहकुंड की खेरी पहाड़ी में शक्तिशाली रहा होगा। शाहकुंड की खेरी पहाड़ी से प्राप्त अभिलेख अभी तक उद्घाटित नहीं हो सके हैं। बेगलर 1872-73 ने इनकी पहचान शंख लिपि के रूप में की है। बागेश्वरी स्थल से प्राप्त एक प्रस्तर पटल पर स्वस्ति प्रतापो रामानुय लिखा हुआ मिला है। बेगलर के अनुसार खेरी पहाड़ी का क्षेत्र राजा शशांक 600 से 637 ईस्वी का प्रमुख स्थल रहा होगा। बुकानन के अनुसार यह गौड़ राजा 7वीं शताब्दी में हर्ष के समय बंगाल और बिहार के बड़े भूभाग का शासक था। शशांक के समय यह क्षेत्र शैव धर्म का केंद्र रहा होगा, जबकि उसके बाद उत्तर गुप्त शासक आदित्य सेन 660 से 680 के समय शायद बौसी के मंदार पर्वत, सुल्तानगंज की अजगैबी मुरली पहाड़ी और शाहकुंड की खेरी पहाड़ी की कठोर चट्टानों को तलाश कर उन पर पसंदीदा धार्मिक विषयों को निष्पादित किया गया होगा।
ये मंदार पहाड़ी पर के हैं, ये भी मंदार के, और ये सुल्तानगंज की अजगैबी पहाड़ी पर है। ये खेरी पहाड़ी का फोटोग्राफ है। लेकिन आदित्य सेन के बाद पाल शासन के समय के नारायण पाल 855 से 910 ईस्वी के भागलपुर दानपत्र अभिलेख से पता चलता है कि राजा नारायण पाल द्वारा भगवान शिव भट्टारक के सहस्त्रायतन मंदिर के लिए और पाशुपत संप्रदाय के सन्यासियों के संघ के लिए तथा उनकी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्राम दान देने के कारण अपने मातहतों द्वारा वह राजन, राजानक और राजपुत्र की उपाधियों से विभूषित हुआ था। मूर्ति की प्राप्ति के संबंध में मुझे दायित्व दिया गया है चर्चा करने के लिए। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड पंचायत खेहरी अंतर्गत तहबल ग्राम के मिश्र टोला वार्ड नंबर 11 से 11 दिसंबर 2020 को नाला खुदाई के दौरान यह मूर्ति प्राप्त हुई। नाला खेरी पहाड़ी के उत्तर दिशा की ओर जिला परिषद की पंचम योजना के तहत खुदवाया जा रहा था। नाले के लिए मजदूरों द्वारा 2-2.5 फीट की खुदाई करने पर फावड़ा अचानक किसी पत्थर से टकराया तो सावधानी पूर्वक और नीचे जाने पर मूर्ति का सिर उभर कर आया। फिर जेसीबी की सहायता से आसपास और नीचे की ओर खोदने पर पेडस्टल सहित सर तक लगभग 7 फीट ऊर्ध्वाधर खड़ी प्रतिमा सामने दिखाई दी। हृष्ट पुष्ट देह यष्टि की ऊर्ध्वलिंगी सर्वतोभद्रिका यह प्रतिमा पश्चिम दिशा की ओर मुखातिब स्थापित की गई थी। प्रतिमा के बाएं हाथ की कलाई सहित हथेली खंडित अवस्था में मिली है। जनेऊ धारण किए हुए इस प्रतिमा के गले में कंठहार, कानों में कुंडल और कंधे पर फैले बालों को कलात्मक ढंग से सजाया गया है। इस प्रतिमा को अब जिला प्रशासन द्वारा शाहकुंड से लाकर भागलपुर संग्रहालय में रखा गया है। धन्यवाद। Thank you, Professor Chaudhary, sir. Thank you for your very enlightening lecture. I may now request and invite Dr. S.K. Manjul, sir, to begin his presentation. नमस्कार। सबसे पहले मैं विद्वज्जनों को, अग्रजों को प्रणाम करता हूं और इस डिस्कवरी के ने एक नए आयाम को और एक नए डिस्कशन को, एक नई समझ को जन्म दिया है। और मुझे लगता है कि हमें इस पूरे क्षेत्र का एक समग्र अवलोकन करने की आवश्यकता है। और प्रोफेसर चौधरी ने बहुत अच्छे ढंग से उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की और वहाँ के और जो स्कल्पचरल आर्ट है उसके बारे में दिखाया कि मुख्य रूप से पहाड़ियों पे और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कला के अवशेष हैं, जो मूर्ति कला विद्यमान है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि इस जो संपूर्ण ऐतिहासिक विवरण है उस ऐतिहासिक विवरण की पुष्टि करता है। तो वो कला का जो एक सतत प्रयोग है और सतत निर्माण है, और वो निश्चित रूप से परिलक्षित होता है। मैं अपने कुछ स्लाइड शो के माध्यम से जो मुझे अनंत आशुतोष द्विवेदी और ये हेरिटेज सोसाइटी के द्वारा प्राप्त हुआ है, उनके आधार पे मैं सभी विद्वज्जनों के सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं जिससे ये स्पष्ट हो सके
कि इसकी तिथि क्रम क्या है, और साथ ही ये कितना रिलेवेंट है ये डिस्कवरी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जो रिसेंट डिस्कवरी शाहकुंड में हुई है, ये आदमकद प्रतिमा है, और इस आदमकद प्रतिमा को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये ऐसा लगता है कि सैंडस्टोन में निर्माण हुआ है इसका, और सैंडस्टोन में ये आदमकद प्रतिमा के साथ नीचे का जो पेडेस्टल है वो भी काफी ऊंचा है। और जो एक फोटोग्राफ में देख रहा था इसके पहले, जब वो प्रतिमा निकल रही थी नीचे से, तो लगभग 3 से 4 फीट नीचे इसकी शुरुआत हुई थी, और ये खड़ी प्रतिमा है जो लगभग 7 फीट 7.5 फीट की हाइट का है। तो इसका अर्थ ये है कि कम से कम 10 फीट नीचे इसका जो बेस है वो 10 फीट नीचे है, और जो प्लिंथ है यानी वर्किंग लेवल, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो इसका वर्किंग लेवल कम से कम 10 फीट नीचे जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि 10 फीट नीचे यहाँ और भी प्राचीन स्ट्रक्चर इस कंटेम्प्रेरी पीरियड की मिलने की संभावना है, जिसको समझने की जरूरत है और प्रॉपर उत्खनन करने की जरूरत है। जहाँ तक इस स्कल्पचर का सवाल है और इसकी पहचान का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कल्पचर जो है वो लकुलिश की प्रतिमा है, क्योंकि इसके जो लांछन है, खासकर ऊर्ध्वलिंगी का होना, यज्ञोपवीत का होना, और ये कर्ली हेयर यानी जटायुक्त हेयर का होना, इस बात को दर्शाता है कि संभवतः ये प्रतिमा लकुलिश की ही है, क्योंकि लकुलिश का जो प्रतिमा की परंपरा है वो पुराणों के अनुसार और संहिताओं में, पुराणों में इसकी कई प्रकार से व्याख्या की गई है, और खासकर शैव परंपरा में शैव, पाशुपत, कलावदन, कपालिका, व्यायव्य संहिता के अनुसार सिद्धांत मार्गस्थ, पाशुपत, महाव्रतधरा एवं कपालिका इत्यादि नामों से कहा गया है। आगमों में भी शैव, पाशुपत, सौमा, लकुला इत्यादि के, और पुराणों के अनुसार ये 28वीं अवतार के या 28वीं इनकारनेशन है शिव का, और कुछ के अनुसार 18वीं इनकारनेशन भी है। लेकिन एक अगर हम परंपरा की बात करें, जो एक लंबी परंपरा है लकुलिश प्रतिमा की, खासकर ऊर्ध्वलिंगी की, तो हम हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में जो सील्स हैं जिसमें सो कॉल्ड पशुपति या प्रोटो शिवा का यौगिक मिश्रण दिखाया गया है, वो भी ऊर्ध्वलिंगी है, और कई अन्य प्रतिमाएं भी ऊर्ध्वलिंगी हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में मिली है। अर्थात इसकी जो परंपरा है वो काफी प्राचीन है, लेकिन पौराणिक उसमें आके इसका एक खास चित्रण और इसकी परंपराओं का उल्लेख होने लगता है। यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में अगर कला की दृष्टिकोण से अगर हम ये देखें तो ये प्रतिमा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, चाहे इसकी ड्रेस हो या शारीरिक सौष्ठव हो या ये जो पूरी कला के दृष्टिकोण से भी ये प्रतिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एकावली देखें तो एकावली के पृष्ठ भाग में यानी पीछे की तरफ उसको बांधने का, उसके बंधन का भी बहुत स्पष्ट अंकन किया गया है, और यज्ञोपवीत भी दिखाया गया है। ये कुछ और दीवारें जो फोटोग्राफ्स मुझे मिली उसमें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, और जो आर्कियोलॉजिकल लेयर और उसमें पॉटरीज और वो भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात यहाँ आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण से अब काफी संभावना है कि हम अर्ली उसको ट्रेस कर सकें। जो अन्य प्रतिमाएं उसके आसपास हैं वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस प्रतिमा को सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देखें,
इसको अन्य प्रतिमाओं के साथ और उसके इवोल्यूशन, उसके क्रमिक विकास को दृष्टिगत करते हुए अगर हम देखें तो ये एक जो प्रतिमा है, गणेश है, शिवलिंग है, और खासकर मंदिर के जो भग्नावशेष हैं, जो वो बहुत सुंदर है। और उसमें भी वो कर्ली हेयर में आप जो दोनों तरफ ये गंधर्व की प्रतिमा है, वो भी बहुत स्पष्ट है, जो गुप्तकालीन प्रतिमाओं से काफी मेल खाती है और उस परंपराओं से ही ये आगे बढ़ रही हैं। तो ये मंदिर के अवशेष भी ये स्पष्ट करता है कि इस आसपास में न सिर्फ रॉक कट आर्किटेक्चर, बल्कि एक मंदिर एक बहुत सुंदर और उन्नत मंदिर भी रहा होगा। ये प्रतिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम 5th-6th सेंचुरी में या आइकोनोग्राफी के दृष्टिकोण से 5वीं-6ठी शताब्दी में हम इसे रख सकते हैं। और आप देखेंगे ये जो नरसिंह की प्रतिमा है, साथ में जो नीचे चक्र दिखाए गए हैं या गदा जो दिखाया गया है, और शंख चक्र भी साथ में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमा है। और इसके जो नीचे का जो धोती के रूप में जो दिखाया गया है, उससे मिलती जुलती धोती जो अभी शाहकुंड में जो प्रतिमा मिली है, उससे लकुलिश की प्रतिमा संभवतः लकुलिश है, जिसकी प्रतिमा से मेल खाती है, काफी कुछ ड्रेपरी मेल खाती है। तो उस परंपरागत प्रतिमा के रूप में आप इसे देख सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से इस प्रतिमा में जो स्टोन यूज किया गया है और दोनों के स्टोन में अंतर है। ये दूसरी जो एक और यहाँ पे फ्रेगमेंट वहां पे दिखाई दे रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संभवतः इसकी भी अगर बाईं तरफ आप देखें तो इसकी भी हाइट लगभग उतनी ही होगी जितनी की अभी ये लकुलिश की प्रतिमा है, लेकिन जो बाह में अंकन है और उसमें बाजूबंद भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक लाइफ साइज प्रतिमा के अवशेष हैं जो वहां प्राप्त हुए हैं। और आइकोनोग्राफिक दृष्टिकोण से भी ये काफी उससे मिलती जुलती प्रतिमा है। किंतु दाहिने तरफ अगर आप देखें तो काले स्टोन की ये जो प्रतिमा है, इसमें भी कर्ली हेयर दिखाई दे रही है, एक अबली है, और संभवतः एक और दो ऑर्नामेंट हैं। और जो लोअर गारमेंट है, जो धोती का बंधन है, उससे ये स्पष्ट होता है कि ये 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास की ये प्रतिमा हो सकती है। तो एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन यहाँ पे जो है वो प्रतिमाओं का दिखाई दे रहा है। जो अगर हम आप दाहिनी ओर देखें, जो टेम्पल के फ्रेगमेंट हैं वो काफी ऑर्नामेंटेड हैं, और उसका ही दोनों पार्ट जो मैंने आपको पहले के फोटोग्राफ्स में दिखाया था, लगभग उसी तरह का ऑर्नामेंटेशन इसमें भी दिखाई दे रहा है। ये एक मुखलिंग है, और दूसरा भी एक मुखलिंग है, लेकिन दोनों का अगर हेयर स्टाइल देखें और उसके जो सिरस्त्रान है, हेडगियर है, उसका ऑर्नामेंटेशन देखें, तो वो एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन दिखाई देता है कि शायद ये 9वीं-10वीं शताब्दी की प्रतिमा है जो हैट के रूप में दिखाई दे रहा है, और जो जटा मुकुट मुखलिंग के साथ है वो उससे थोड़ी अर्ली प्रतिमा है। ये उसका ही क्लोजअप व्यू अगर आप देखिए तो कितना सुंदर प्रतिमा है। अब हम आते हैं इसके डिस्कशन पे कि इसका आइडेंटिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मुझे लकुलिश प्रतीत होता है अपने लांछनों के अनुसार, और इसका जो प्रोबेबल डेट है लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी लगता है कि क्योंकि जो यज्ञोपवीत का जो अंकन है वो शायद 5वीं 6ठी शताब्दी के बाद मूर्तिकला में दिखाई देता है।
और साथ ही जो कर्ली हेयर है वो गुप्त काल से की परंपरा को फॉलो कर रहा है। तो संभवतः ऐसा लगता है कि ये प्रतिमा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास की होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो मैं आगे के स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, अगर आप देखें तो बोधिसत्व की प्रतिमा जो है 1st-2nd सेंचुरी सी की, और उसके बाद उसके आसपास की और सत्व की प्रतिमा की परंपराओं में दूसरा लकुलिश की ये प्रतिमा है जो 2nd सेंचुरी एडी की है। और उसके साथ साथ ये जो एवोल्यूशन है, जो यक्ष की प्रतिमाओं, बोधिसत्व की प्रतिमाओं और लकुलिश की प्रतिमा परंपरा में, ये उसके एवोल्यूशन में ये क्लियर कट उससे लेट दिखाई देता है। ये दूसरा, अगर लकुलिश की परंपराओं का भी अगर एवोल्यूशन देखें तो ये अर्ली प्रतिमा जो प्रथम शताब्दी ये 2nd सेंचुरी बीसी की है। उसके बाद ये अहिछत्रा की से प्राप्त प्रतिमा है। और ये हाँ, तो जो ड्रेपरी का एवोल्यूशन है या हस्त मुद्राओं का एवोल्यूशन है या हेयर्स का और एवोल्यूशन है या फिर ऑर्नामेंटेशन के चेंजेस हैं, ये भी, और शारीरिक सौवस्त जो दिखाया गया है वो भी एक इवोल्यूशन में हम उसको देख सकते हैं कि किस तरह ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रहा है प्रतिमाओं का। अगर हम ये गुप्तकालीन प्रतिमाओं और गुप्तोत्तर कालीन प्रतिमाओं की भी बात करें तो कर्ली हेयर का जो स्टाइल है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, ये आप स्पष्ट देख सकते हैं, और साथ ही ऑर्नामेंटेशन का डेवलपमेंट। ये अगर तुलनात्मक अध्ययन के रूप में अगर हम देखें तो जो गुप्तोत्तर काल और गुप्त काल की प्रतिमाओं में का जो हेयर स्टाइल है और ये शाहपुर कुंड से प्राप्त ये लकुलिश की प्रतिमा का जो हेयर स्टाइल है, उसमें सामंजस्य तो है, किंतु बिल्कुल जो गुप्त काल में जिस तरह का हेयर स्टाइल है उसके डेवलपमेंट में या उसके विकास के अंतिम चरणों का ये विकास दिखाई देता है। साथ ही कर्णकुंडल और उसकी भी बात करें तो वो ये एवोल्यूशन में लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास का मुझे प्रतीत होता है। ये अन्य देवगढ़ की प्रतिमा में भी अगर अलग अलग हेयर स्टाइल, खासकर गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल तक वो चलती रही हैं, वो हेयर स्टाइल आप उससे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। साथ ही अगर ये ड्रेपरी की बात करें, जो लोअर गारमेंट है, और जो गुप्तकालीन प्रतिमाओं में जो लोअर गारमेंट है उसके मध्य मध्य भाग की अगर हम बात करें तो उसका भी एक डेवलपमेंट या उसका जो अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव दिखाई देता है आइकोनोग्राफी के हिसाब से, उसके डेवलपमेंट के हिसाब से, कला के दृष्टिकोण से। ये उसका कुछ क्लोजअप व्यू है। अगर आप ये पाँव की उंगलियों को देखें और उसके ये कुछ और हेयर स्टाइल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी विद्वानों के साथ इसको विशेषकर इस कला के दृष्टिकोण से इसे समझने की जरूरत है। और अब ये फ्लोर, थैंक्स। Thank you, sir. Thank you, Dr. Manjul, sir, for sharing your insights on this very important topic. Thank you so much, sir. I may now request Umesh Chandra Dwivedi, sir, to kindly begin his presentation. Thank you, sir. धन्यवाद आजाद जी।
दुर्भाग्यवश मैंने कोई प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाया है, लेकिन इस प्रतिमा को देखने का अवसर मुझे भी मिला है। भागलपुर संग्रहालय के पूर्व संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर ओपी पांडे ने सर्वप्रथम मुझे इस मूर्ति का एक छायाचित्र व्हाट्सएप पर भेजा था और उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा किसकी होगी, किस काल की होगी, ये बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जिलाधिकारी चाहते हैं कि इसका पहचान किया जा सके। उसी समय मैंने देखा, बाद में अनंत आशुतोष ने मुझसे अनुरोध किया कि इस संगोष्ठी में भाग लें। यहाँ तक मूर्ति देखने की मैं पूर्व के वक्ताओं प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी और डॉक्टर संजय मंजुल दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने वस्तुतः बहुत काम हमारा आसान कर दिया है, क्योंकि मूर्ति इन्होंने दिखाया है। और मैं मंजुल जी के इस विचार से सहमत हूं कि ये प्रतिमा 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास की होनी चाहिए। अभी प्रोफेसर चौधरी भी बता रहे थे कि शशांक का उस क्षेत्र में शासन था, और शशांक आप जानते हैं कि शशांक एक ऐसा व्यक्ति था जो शिव की पूजा छोड़कर किसी की पूजा नहीं करता था। और तो और कहा जाता है कि बोधगया मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वो शशांक के द्वारा लाया गया था, और शशांक जहां भी जिस भी जगह गया, जिस क्षेत्र में उसने विजय प्राप्त की, वहां किसी भी देवी देवता, चाहे बौद्ध हो हिंदू हो, वहां उसने शिव की पूजा, शिव की मूर्ति या लिंग के प्राण प्रतिष्ठा जरूर की है। बिहार में अगर हम शिवलिंग की ये अभी लकड़ीस की बातचीत हो रही थी, लकड़ीस से इसकी मंजुल जी कह रहे थे लकड़ीस की पहचान, थोड़ा जरूर मुझे लकड़ीस, शिव कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं, लकड़ीस कहने में कठिनाई है। क्योंकि अगर बिहार से अभी तक जो मेरी जानकारी है उसमें 4 लकड़ीस की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। एक मुंडेश्वरी के आर्किटेक्चरल पीस में हम लकड़ीस को देखते हैं। लकड़ीस बैठे हुए हैं, उनके एक हाथ में वो मुदगर या छड़ी, जो भी आप कहिए, क्लब शब्द जनरली लोग यूज करते हैं अंग्रेजी में, वो उनके हाथ में देखने को मिलता है। योग पट पर बैठे हुए हैं, वहां भी योग पट के से उनका पैर बांधा हुआ और बैठी प्रतिमा है। अगर इसी ढंग से अगर बेनी सागर से भी जो ये जहां तक मुंडेश्वरी के मंदिर का प्रश्न है, इसको गुप्त काल में कुछ लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है, लेकिन ये उत्तर गुप्तकालीन है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी करीब उसी काल में बेनी सागर में एक भी मूर्ति प्राप्त है। वहां भी बुद्ध लकड़ीस बैठे हुए हैं, बहुत कुछ बुद्ध की मुद्रा में, और उनके हाथ में भी एक छड़ी, दंड जो भी कहा जाए, एक है। और उनके 4 शिष्य, बुद्ध जो लकड़ीस के 4 शिष्य जो कहे जाते हैं, कौशिक, गर्ग, पौरुष और मित्र, इन चारों का अंकन है, लेकिन एक चित्र स्पष्ट है। फिर गया संग्रहालय में 2 प्रतिमाएं हैं इसकी, ये दोनों पालकालीन हैं। और इन प्रतिमाओं में भी अगर देखा जाए तो सभी के हाथ में वो उनका लांछन क्लब देखने को मिलता है। एक कमलासन में उनकी मूर्ति है जो दोनों पैर आसन पर ही रखा हुआ है, और एक ललितासन में। दोनों प्रतिमाएं लगभग कुछ ही दूर पर जगह से, पाली एक जगह है उतरेन पाली, उसी के पास जो कोच का प्रसिद्ध मंदिर है उसकी से थोड़ी दूरी पर ये है, वहीं से दोनों प्राप्त है। एक अर्ध परंक्यासन में और एक दोनों पैर जिसका आसन में रखा हुआ है। वहां भी 4 उनके शिष्य दिखाए गए हैं।
उनका दाहिना हाथ में मातुलिंग टाइप का एक गोल चीज रखा है और बाएं हाथ में वो क्लब को उधार लिए हुए हैं। और भागलपुर क्षेत्र से भी इसके पहले एक और मूर्ति जो मिली है, जो विक्रमशील महाविहार के उत्खनन में डॉक्टर BS वर्मा को मिली थी, वहां भी बुद्ध को बैठे हुए दिखाया गया है, उनके दोनों पैर योग पर बंधे हुए हैं। वहां एक बड़ा अनोखा चीज है, वहां दोनों हाथ से उस क्लब को वो धारण किए हुए हैं और दोनों हाथ के सपोर्ट और तो और वो पैर पर रखा हुआ है। ये जो बात है वो मंजूर, मतलब मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं करता हूं कि ये लवकुश की प्रतिमा नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि अगर ध्यान दिया जाए तो ये अभी हम जो इस प्रतिमा को हम देख रहे थे या अभी जिस प्रतिमा के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उन दोनों का हाथ लगभग एक पोस्चर में है। और अगर विक्रमशील में जो हम मूर्ति देख रहे हैं, अगर उससे मिलता जुलता ये अगर दोनों हाथ में अगर इस वो क्लब को अगर धारण किए होंगे तो वो भली टूटी हुई है, वहां वो अगर वो क्लब टूट गया है, वो पोर्शन हट गया है, तो वो होने के लिए ये क्लब, ये मान के हम चले कि क्लब भी जो उनके हाथ में था या लाठी जो उनके हाथ में रहता है वो हो सकता है। यदि अगर उसको मान लेते हैं कि ये ऐसा था, तब लवकुश के रूप में इसकी पहचान करना कठिन नहीं होगा। लेकिन जब तक, चूंकि वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उस हाथ में कोई सामग्री था, तब तक ये कहना बड़ा कठिन हम लोगों के लिए है कि इसे लवकुश, हाँ, इसमें कोई शंका नहीं हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि ये शिव की प्रतिमा है। ऊर्ध्वलिंग की प्रतिमा में किसी भी पुरुष आकृति का अगर कला में प्रदर्शन हुआ है तो वो शिव ही है। निश्चित रूप से कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा कि क्यों नहीं जैन प्रतिमा हो सकती है। हमने कहा कि जैन प्रतिमा होती तो या तो वो जो कपड़ा भी उनके यहाँ लपेटा हुआ है, वो चर्म, जो बाघ चर्म भी हो सकता है, यानी कि पूरे शरीर को नहीं ढके हुए, वो उनके ठेहुना तक ही आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो व्याघ्य चर्म जो शिव के निचले भाग को ढकते हुए कई जगह दिखाया गया है, वो होना चाहिए। और ऊर्ध्वलिंग, और जैन प्रतिमाओं में कभी भी ऊर्ध्वलिंग नहीं दिखाया गया, लिंग जरूर दिखाया गया लेकिन ऊर्ध्वलिंग कभी नहीं दिखाया गया है, उनको कपड़ा भी नहीं पहनने दिखाया गया है। जब अधिकांश जो अभी तक जो जैन प्रतिमाएं जो सामने आती हैं, तो जहां तक डेटिंग, इसलिए भी यहाँ एकावली है। बिहार में जो भी प्रतिमाएं मिली हैं, जो पाल पीरियड में जो मूर्तियां मिलती हैं, जो लेट अगर फेज में अगर हम देखते हैं तो सभी ब्लैक बसाल्ट स्टोन या ब्लैक स्टोन या ग्रे स्टोन की मिलती हैं। ये जो संयोग से जो जितनी भी प्रतिमाएं, क्लासिकल गुप्त बहुत कम प्रतिमा बिहार से दुर्भाग्य से अभी तक मिल पाई है, एक दो छोड़कर जो भी मिली है सब लेट गुप्त फेज के या लेटर गुप्ता फेज का। और जो गुप्त पीरियड के गला में खास करके बिहार जो भी देखा गया है, इस फेज में एक कावली देखा गया है जो इस प्रतिमा में भी है। तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रतिमा को निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यह 6वीं सेंचुरी का बना हुआ शिव की प्रतिमा है। और लवकुश के रूप में इसकी पहचान अभी तुरंत करना कठिन है, लेकिन क्योंकि अभी तक जो भी लवकुश की प्रतिमा भी जो मिली है, एक और भी सबसे बड़ी बात है कि बिहार से जो भी लवकुश की प्रतिमाएं या इस क्षेत्र से जो भी लवकुश की प्रतिमाएं हैं, सभी बैठी हुई मिली हैं। ये एक लौता ये खड़ी प्रतिमा है। तो इस खड़ी प्रतिमा होने के कारण भी और लवकुश को गुरु भी माना जाता है। जनरली व्याख्यान जो देने की एक हमारे यहाँ की परंपरा है कि साधारणतः व्याख्यान लोग बैठकर देते रहे, गुरु व्याख्यान इस ढंग से जो देते रहे। और मूर्तियां जितनी भी लवकुश की जो अधिकांश जो प्रतिमाएं जो मिली हैं, उन्हें बैठे हुए दिखाया गया है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यह
हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये शिव की उत्तर गुप्तकालीन या लेट गुप्त प्रतिमा है, जो लवकुश की भी हो सकती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आप सबों को, जितने भी हमारे अग्रज हैं या जो हमारे कर्मी हैं, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर B.R. मनी सर को आमंत्रित करूंगा तथा साथ ही निवेदन करूंगा कि सर आप हमें अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। सर सबसे पहले मैं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में शामिल होने का अवसर दिया। मुझे शाकुंड से प्राप्त इस प्रतिमा और इसके अतिरिक्त अन्य जो पुरावशेष वहां से उपलब्ध हुए हैं, उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अनंताशुतोष द्विवेदी जी ने जो चित्र भेजे और जिसके ऊपर आजकल डिस्कशन हो रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में, उनके आधार पे और उन चित्रों को देखते हुए मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस प्रतिमा को देखकर कि ये मैं इसे थोड़ा सा मेरा मतभेद रहेगा, उत्तर गुप्तकाल या 6वीं शताब्दी ईस्वी में इसको रखने में मैं इसे कुषाण और गुप्त काल के जो संक्रमण काल है उस समय रखना चाहूंगा, और मेरे हिसाब से 3rd या 4th सेंचुरी AD इसकी डेट होनी चाहिए। जो बोधिसत्व की प्रतिमाएं विशाल प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, चाहे वो अहिछत्रा से मिली हो, चाहे सारनाथ से मिली हो, चाहे अन्य स्थानों से मिली हो, और जो जिनमें बोधिसत्व को सम्मुख देखते हुए दर्शाया गया है, उनके शारीरिक सौष्ठव को दिखलाया गया है, उनके दोनों पैर सीधे सामने की तरफ बने हैं, और विशेष रूप से जो उनका चेहरा है उन प्रतिमाओं का, उनसे अगर आप इस प्रतिमा को कंपेयर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतिमा 3rd 4th सेंचुरी AD के आसपास की होनी चाहिए। अब यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि और ये लकुलिश की प्रतिमा मुझे प्रतीत होती है, जिस तरह से ये ऊर्ध्वलिंग इसमें दर्शाया गया है, और जैसा कि अभी द्विवेदी जी ने भी कहा कि जैन प्रतिमाओं में ऊर्ध्वलिंग नहीं होता है, और ये शैव प्रतिमा तो निश्चित रूप से है, इसमें तो कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, लेकिन लकुलिश की प्रतिमा का प्रारंभिक चरण हमें प्रतीत होता है, जो कि बोधिसत्व की प्रतिमाओं से प्रभावित था, और उस समय लकुलिश का जो प्रतिमा विधान था वो उतना मुझे लगता है कि डेवलप नहीं हुआ था। मथुरा से एक स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय का 380 ईस्वी का, जिसमें उदिताचार्य की चर्चा है, जो कुशिक से की 10वीं पीढ़ी में आते हैं, और उस गुरु परंपरा में कुशिक का हम सब जानते हैं कि कुशिक लकुलिश के उन 4 शिष्यों में एक शिष्य थे। तो इस प्रकार लकुलिश को भी हम एक हिस्टोरिकल फिगर मान सकते हैं, और लकुलिश को की तिथि अगर हम 1ली शताब्दी या एट द मोस्ट 2nd सेंचुरी AD का प्रारंभिक भाग रखें, तो
कोई उसमें अर्ज नहीं है। अब लकुलिश की का जो पाशुपत शैव धर्म था वो किस तरह से कश्मीर पहुंचा, कश्मीर में जाकर के कश्मीर मठ बने, और कुछ समय पूर्व जो कश्मीर में पाकिस्तान के पेशावर के आर्कियोलॉजिस्ट हैं नसीम खान, उन्होंने एक्सकवेशन भी कराया और वहाँ एक बहुत विशाल केव है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मर्दान के पास, जिसे सीता महाकंदरा कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि श्वानसांग ने इस स्थान पर, श्वानसांग के विवरण में भी उसका उल्लेख आता है, और महेश्वर देव के टेम्पल का भी उल्लेख है वहां पर। एक वहां से कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी मिला है जिसमें वर्धमानेश्वर शिव की बात करते हैं। और पहाड़ी के नीचे कम से कम 3 शैव मठ का पता चला है, शैनी मठ, हनी मठ और पार मठ। और इनके अलावा अनेक प्रतिमाएं और सीलिंग्स वगैरह मिली हैं, जो जिनमें एक पर दूसरी तीसरी शताब्दी के स्क्रिप्ट में श्री सीताराम लिखा है। और इसके अलावा जो लज्जा गौरी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, उनके सीलिंग्स मिले हैं जिनमें उनको भीमा कहा गया है। तो इस तरह से ये जो शैव धर्म का प्रचार कश्मीर तक हो चुका था, तो इस शैव धर्म का प्रचार बिहार में तो पहले हुआ होगा। और लेकिन उस समय तक मैं ये मानता हूँ कि शायद लकुलिश की जो प्रतिमाएं आगे चल करके हमें मिलती हैं, जिसमें अपस्मार पुरुष के ऊपर उनके स्टैंडिंग पोस्चर में लकुलिश की प्रतिमाएं हैं, या हाथ में लकुट लिए हुए उनकी प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, उनसे थोड़ा ये प्रतिमा भिन्न है। अगर ये गुप्त या उत्तर गुप्त काल की होती तो इसमें निश्चित रूप से प्रतिमा विधान के वो लक्षण दिखलाई देते। और गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल में हम जानते हैं कि कितनी शारीरिक सौंदर्य पे जो मुखाकृति है उसके लुक में कितना अधिक सुधार आया पिछले परंपराओं से, जो कुषाण मूर्तियों में नहीं था। और उस हिसाब से हमें ये प्रतिमा उस संक्रमण काल की लगती है जब कुषाण विदा हो चुके थे, और तीसरी शताब्दी या चौथी शताब्दी जब काल का प्रारंभ हो रहा था, उससे जस्ट पहले इस प्रतिमा को मेरे हिसाब से रखा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचारों से हमें काफी लाभ प्राप्त हुआ सर। मैं अब सत्र के मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर दीनबंधु पांडे सर को आमंत्रित करूंगा तथा निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष भाषण के साथ कार्यक्रम की को आगे बढ़ाएं सर। डॉक्टर दीनबंधु पांडे सर से निवेदन करूंगा कि सर अपने अध्यक्ष भाषण को से हम सभी को लाभान्वित करें। जी हाँ, यह सत्र बड़ा ही जानदार रहा और कई मायने में रहा। आप सब लोगों को मेरा हृदय से धन्यवाद है।
और जिन लोगों ने अपनी बातें कही हैं उन सब के अपने अपने तर्क हैं, और संक्षेप में ही मैं कुछ बातें कहूँ तो, लेकिन समय उसमें लगेगा, और कुछ मुझे अपनी भी बातें कहनी हैं आप लोगों से। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि जरा बेटा बैठना हुआ देना होगा, इसको शेयर करना होगा। तो जैसे बिहारी लाल जी ने जो एक वस्तु स्थिति बताई क्षेत्र की, उसमें उन्होंने इतिहास भी बताया और बहुत सारी जो चीजें मिली हैं वहां की उनसे भी परिचित कराया। उस परिचय के साथ जब उन्होंने बस एक द्वार पर ला करके हम लोगों को छोड़ दिया कि अब ये मूर्ति है, अब आप लोग विचार करिए, तो यानी ये एक ढंग है, विचार विमर्श का तरीका है। तो उससे हम लोगों का जो एक बैकग्राउंड मिला, क्योंकि एक मूर्ति पर चर्चा होनी है और उस मूर्ति के आसपास क्या है ये जान लेने पर उसके बारे में एक आकलन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस दृष्टि से बिहारी लाल जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक हमको पृष्ठभूमि प्रदान की। और मंजुल जी ने तो बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। मैं समझता हूं कि उन सारी मूर्तियों को जो इन्होंने जुटा करके और जो वाजिब बात है उसको कहने के लिए एक क्रम दिया, और उनकी बातें हमने बहुत सारी इसमें नोट की हैं। कभी मैं इसको जब कभी आपके पास भेजना होगा तो मैं उसको लिख करके उसमें डाल दूंगा। लेकिन जो इन्होंने कुषाण गुप्त के समय से लेकर के, या कह लीजिए शुंग काल से ही वो परंपरा शुरू हो जाती है बड़ी बड़ी मूर्तियों के बनाए जाने का, और उससे जोड़ करके जो बात आपने कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको लेकर के बुद्धरश्मि मणि जी ने भी आगे बढ़ाया है। तो लेकिन एक बात इन सब में अटकती है। अटकती ये है कि लकुलिश का लक्षण तो कहीं पर प्राप्त नहीं होता है। लक्षण का अर्थ ये नहीं होता है कि ये मूर्ति में मिलती है तो ये लक्षण हो गया। उसको शास्त्र सम्मत होना चाहिए, और जब तक शास्त्र सम्मत नहीं होगा तब तक कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। अब संभवतः मंजुल जी ने हड़प्पा तक पहुंचा दिया, तब हड़प्पा में भी लकुलिश हो गया। लेकिन ये मानने तो नहीं हो सकता, क्योंकि लकुलिश की शाक्त परंपरा में, शैव दर्शन में, शैव धर्म में एक स्थिति है। तो लकुलिश के समय के पहले तो लकुलिश हो नहीं सकता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम सब लोगों के सामने। तो केवल कला की दृष्टि से नहीं देखना है, केवल कुछ मूर्तियों की परंपरा की दृष्टि से भी नहीं देखना है। हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, इनका समय काल जो है वो फ्लीट ने तो करते करते वो 12वीं शताब्दी तक ले आए फ्लीट, और फ्लीट की बात को D.R. भंडारकर साहब ने वो काटा, और राव साहब ने बड़े अच्छे ढंग से एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी में उसको जिक्र किया है, और उन्होंने भी सेकंड सेंचुरी ही कहा है उसको। उन सबके मतों को करते हुए वो सेकंड सेंचुरी तक लकुलिश की परंपरा को ले जाते हैं।
तो अगर मान लीजिए सेकंड सेंचुरी में आरंभ भी हुआ हो तो लकुलिश तो अंतिम है, शाक्त परंपरा में अंतिम है वो, और 28वें अवतार हैं, कहीं कहीं 12वें या 18वें ऐसे भी कहा गया है, लेकिन 28वें तो माने ही जाते हैं वो। और सिस्टमेटाइजर ऑफ द शाक्त पैंथियन, शाक्त संप्रदाय के को एक सिस्टमेटिक ढंग दिया उन्होंने, इसको तो इनकार नहीं कर सकते। और इसका काल बहुत बाद में आएगा, वो आपका न 3rd सेंचुरी में जाएगा, न 2nd सेंचुरी में जाएगा, और न हड़प्पा में जाएगा, और न गुप्त काल में ही आएगा। तो कुल मिला के बचता वही है, 5th 6th सेंचुरी हम लोगों के पास बचता है इसको मानने और उसको करने के लिए। लेकिन ये एक हम अपनी बात केवल उस तरह से कर रहे हैं, विचारणीय सभी बातें हैं, ऐसा नहीं कि जो बातें कही गई हैं वो इसके कारण से, जैसे द्विवेदी जी ने कहा, उमेश जी ने, कि अब वो तो अपनी उसको उन्होंने, और सबसे बड़ी बात उन्होंने इतनी मूर्तियों का जिक्र किया, मंजुल जी ने भी, जो ये सब मूर्तियां बहुत कम लोगों को ज्ञात हैं। तो जैसे वहाँ की पांचाल की मूर्ति आपने दिखाई, तो वो चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बात को भी महत्व दीजिए कि वह आखिर वह कल्ट कब शुरू होता है, हमारे पास क्या क्या वो है, आधार क्या है उसका। मैं कुछ बातें अपने स्लाइड्स के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें कुछ तो यही बातें हैं जो मैं अभी कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी 2 बातें मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। जरा इसको शेयर कर दो तुम। यहीं पर रखे हैं, यहीं पर रखे हैं, यहाँ पर है ये, है? इसमें हम रखे हैं यहाँ, हाँ हाँ ये ठीक, थैंक यू जी। हम इससे कर ले क्या? हाँ जी, आवाज जा रही है? जी आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है जी। अच्छा जी, हाँ जी जी। तो मैं अपनी बात आपके सामने थोड़ा कुछ आप लोगों की बातों को लेते हुए और कुछ अपनी नई बात आपके सामने वो रखते हैं। देखिए, मुझे इस मूर्ति के बारे में हमारे बड़े अनन्य हैं उदय शंकर जी, और वो एक राजनामा पत्र निकालते हैं, उसके वो कार्यकारी संपादक हैं, और वो लिखते भी हैं, उदयेश रवि करके उनका लेखन का नाम है। और ये इसके बारे में उन्होंने अपने राजनामा में छापा, और वो मुझे उन्होंने दिया। 17 दिसंबर का उनका अंक था, जिससे कि बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें से दिखी। जैसे अनेक बातों में मैं थोड़ा जो मुझे ज्ञात हुआ उसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उनसे जो भी जानकारी मिली थी, उस जानकारी के बाद ज्ञानेंद्र नारायण राय ने हमसे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत अध्ययन केंद्र से,
उन्होंने मुझसे संपर्क किया और इसके बारे में बताया, और ये जो हेरिटेज सोसाइटी की ओर से कुछ होने वाला है इसकी जानकारी दी। और फिर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी से बात हुई और ये इसके बारे में हमें जानकारी मिली। तो ये जानकारियां, और फिर हमको वो सारे फोटोग्राफ्स भी प्राप्त हुए देखने को। लेकिन उदय जी ने जो एक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये कही है कि इस क्षेत्र में अकबर के समय में एक राजवंश हुआ था, और उस राजवंश से जोड़ते हुए भी हमको इस मूर्ति के विखंडित होने का रहस्य ढूंढना चाहिए। क्योंकि यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बात प्रोफेसर जयंत बनर्जी ने भी कहा है। मैं ये तो वो चित्र अभी आपने देखा है और उसी का ये एक तरह से रिपीटिशन है। तो इसके साथ हम एक बात यह कहना चाहेंगे कि इस तरह के इतिहास को रिलेट करते हुए कि मुसलमानों के समय में बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से जैन बनर्जी जी ने अपने डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी में कहा है। तो ये एक स्थिति है जिसको हम आगे भी चर्चा में लेंगे। लेकिन मैं यहाँ इस मूर्ति के अन्य पहलुओं की, इसकी बड़ी चर्चा आप लोगों ने भी की है, और सच में ये मूर्ति बड़ी ही सुंदर है और प्रशंसनीय है। इसका लट वगैरह भी बड़ा ही आकर्षक है। लेकिन जिसकी चर्चा विशेष रूप से की गई, दो वक्ताओं ने उसकी चर्चा की, कि ये जो यज्ञोपवीत है, इस यज्ञोपवीत का अंकन बहुत महत्वपूर्ण है। और यज्ञोपवीत का महत्वपूर्ण चाहे जिस तरह से हो, ये लकुलिश के प्रतिमा विज्ञान में आता है नहीं आता है, इसकी चर्चा आगे हम लोग कर सकेंगे। लेकिन कला के अंकन की दृष्टि से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिसका अंकन पीठ की ओर हुआ है उसका अंकन सामने की ओर नहीं किया गया। ये एक विचित्र बात है, क्योंकि अगर पीठ की ओर उनका अंकन किया गया उस यज्ञोपवीत का, तो सामने भी उसका अंकन होना चाहिए था, जो इस मूर्ति के चित्रों में नहीं दिखाई देता है। मैं नहीं जानता कि ये अंकन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी चीज, मैं इस अंकन की दृष्टि से, कलात्मक उसकी दृष्टि से, इस मूर्ति के पांवों की ओर देखता हूं। ये दोनों पांवों में रचना की दृष्टि से भेद है। भेद यह है, ये केवल फोटोग्राफी का नहीं आप कह के इसको छोड़ सकते हैं। भेद यह है कि उंगलियों का की रचना में अंतर है। दोनों पांवों में आप जरा ध्यान करके देखें तो आप देखेंगे कि कहीं अधिक दूरी है दो अंगुलियों के बीच में, और कहीं कम दूरी है दो अंगुलियों के बीच में। तो यह इस दृष्टि से मैंने इसको ध्यान दिया है कि इससे हम लोगों को, जो हम लोग डेट करना चाहते हैं, इसकी तिथि का निर्धारण करना चाहते हैं, उसमें इसका सहयोग लेना चाहिए। देखिए, एक और मूर्ति, बहुत सारी मूर्तियों की आप लोगों ने जो चर्चा की है, उसमें एक मूर्ति इंडोलॉजी फाउंडेशन दिल्ली ने हम लोगों के वॉल पर भेजा था,
और ये दिया है। संभवतः यह सोमेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर के सोमेश्वर मंदिर की यह मूर्ति है। और ये भी बड़ी सुंदर मूर्ति है और बहुत ही अच्छी है, जिसका जिक्र अभी नहीं हुआ था। देखिए, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है इसके संदर्भ में कि मूर्ति को जब प्राप्त किया गया तो वो 15 फुट नीचे से प्राप्त हुई है, और 15 फुट नीचे से प्राप्त होना एक महत्वपूर्ण घटना का, किसी न किसी तोड़फोड़ की पूरी संभावना का एक जिक्र जान पड़ता है। जैन बनर्जी जी ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के पूर्व मध्यकालीन मूर्तियों के संबंध में ये बात बड़े बेबाक ढंग से कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा गया है। तो इस दृष्टि से भी, यानी इस मूर्ति में भी खंडन है इसमें, यानी टूट फूट है। एक हाथ में मातुलिंग जिसमें एक में लिया हुआ है, दूसरे हाथ का लकुट जो है वो नहीं है, और भी कई स्थानों पर क्षति हमको दिखाई देती है। तो उन्होंने जो लिखा है वो आपके सामने है, और ये एक्टिविटीज रिसीव्ड ए रूड चेक in the hands of many of the Muslim rulers of India after her invasion by Mohammedans. तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और उसकी शिकार यह मूर्ति भी है। मूर्ति का सीधी खड़ी स्थिति में मिलना ये भी बताता है कि संभवतः इसमें कोई भूकंप, भूस्खलन जैसी घटना हुई हो और यह मूर्ति सीधे नीचे चली गई हो। तो ये एक दूसरी बात है जो इसमें हमें दिखाई देती है। ये लकुलिश की जो मूर्तियां हैं, इनके संदर्भ में कुछ जो जगह जगह पर बातें कही गई हैं, उनको हमने आपके सामने यहाँ रखा है, लेकिन हम इन सब पर विशेष ध्यान न देते हुए हम लोग अपने आगे की चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये शिव श्रीकंठ, ये शांति पर्व में इसका संदर्भ आता है नारायणीय सेक्शन में, और मथुरा स्टोन इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब की बहुत चर्चा इसमें एक तरह से वांछित है। ये उनके ग्रंथों आदि के संदर्भ में वो होता है, और ये 20वें अवतार माने जाते हैं। ये एंटिक्विटी वगैरह की बात थोड़ी सी हमने की है, और ये उनकी प्राचीनता आदि का थोड़ा मैंने जिक्र किया है। कूर्म पुराण आदि में ये चीजें आई हुई हैं इनके। लकुलिश के संबंध में कुछ कोशों में चीजें हैं जिनको हमने यहाँ एकत्र किया है, और
तो इनको हम एक सीधे तौर से आगे बढ़ रहे हैं। लकुलिन नाम के एक मुनि हैं, लकुल आदि आदि ये सब चीजें हमको इसमें प्राप्त होती हैं। लगुड, क्योंकि वो एक लगुड पकड़े हुए होते हैं, इसलिए ये अशोक के अभिलेखों को भी लिंग के नाम से कहा गया है और बताया गया है। और भीम की गदा, लकुलीश की गदा, उज्जैन के दंडधारी शिव महाकाल, इन सब का संदर्भ लेते हुए ये हम इसमें आगे बढ़ते हैं। से जाएगा भाई आगे। मूर्ति की तिथि क्या समय होना चाहिए मूर्ति का? हाँ, तिथि, जी 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 जी। अब समय तो वो जैसे आपने बताया है, वो कुषाण गुप्त के बीच का ही समय है ये मूर्ति का। जी अब ये कुछ गड़बड़ हो गया है, चाहे जैसे भी हो प्रस्तुतिकरण में, कोई बात नहीं। लेकिन स्लाइड्स आपने देखी, हाँ स्लाइड्स आपने देखी हैं और उसके अनुसार ही चीजें कहनी थी, और समय का भी अगर व्यवधान है तो बहुत कुछ तो आगे नहीं कहा जा सकता है। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रोफेसर दीनबंधु पांडे sir for your very illuminating, thoughtful lecture sir. I may now request Professor Sadasiv Kumar Dwivedi sir, coordinator Banaras Hindu University, Bharat Adhyan Kendra, Banaras Hindu University, to kindly present vote of thanks. Thank you sir. सभी विद्वान वक्ताओं, माननीय अध्यक्ष महोदय तथा मुख्य अतिथि जी को मैं प्रणाम निवेदन करता हूं। भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट, हेरिटेज सोसाइटी पटना के संयुक्त तत्वावधान में रिसेंट डिस्कवरी एट शाहकुंड भागलपुर में जो अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसके ऊपर आज जो विद्वानों ने परिचर्चा की, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण, रोचक तथा अनेक नई जानकारियों से युक्त थी। इस परिचर्चा में सम्मिलित होने वाले विद्वान वक्ताओं में सर्वप्रथम डॉक्टर बिहारी लाल चौधरी जी ने, जो तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय पुरातत्व एवं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस खुदाई का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। भारत अध्ययन केंद्र के लिए यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि 12 दिसंबर को यह प्रतिमा हमारे सम्मुख उपस्थित हुई और आज लगभग 15 दिन के अंदर भारत अध्ययन केंद्र को हेरिटेज सोसाइटी ने इस प्रतिमा पर इतने महत्वपूर्ण वक्तव्यों के साथ जोड़ने का सुअवसर प्रदान किया। तो डॉक्टर बिहारी लाल चौधरी जी, जो इस एक्सकेवेशन से सीधे जुड़े हुए हैं, उन्होंने संपूर्ण विवरण दिया खुदाई का और प्रतिमा के बारे में भी विस्तार के साथ हमको परिचित कराया। डॉक्टर संजय मंजुल जी ने प्रतिमा के स्वरूप पर प्रकाश डाला। आपने बताया कि लकुलीश की जो प्रतिमा, जिसे हम लकुलीश मान रहे हैं, वह प्रतिमा शैव पाशुपत मत के संस्थापक लकुलीश की प्रतिमा है, परंतु इसका यदि हमें आकलन करना है तो हमें अन्य प्रतिमाओं के साथ इसका आकलन करना पड़ेगा जो वहां उपलब्ध हुई हैं।
वहां जैसे गणेश की प्रतिमा उपलब्ध हुई है, शिवलिंग उपलब्ध हुए हैं, मंदिर के भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं, और अन्य जो नरसिंह की प्रतिमा इत्यादि जो उपलब्ध हुई है, उन सब के साथ इसका हमें संयुक्त रूप से आकलन करना पड़ेगा। केवल उस प्रतिमा का मात्र आकलन हम न करें। 5वीं या 6ठी शताब्दी की यह प्रतिमा है। इसके अतिरिक्त शैव के साथ वैष्णव चिन्ह भी वहां प्राप्त होते हैं, जैसे शंख है, चक्र है, गदा है इत्यादि जो भगवान विष्णु के चिन्ह है वो भी उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर उमेश चंद द्विवेदी जी ने कहा कि ये लकुलीश हो भी सकती है और लकुलीश नहीं भी हो सकती, तो यह मान लेना कि यह लकुलीश की ही प्रतिमा है यह उचित नहीं है। हमें इस पर और अधिक विचार करके इस निर्णय तक पहुंचना चाहिए। इन 3 विद्वान वक्ताओं ने इस संपूर्ण प्रतिमा जो उपलब्ध हुई है हमें, इस प्रतिमा के बारे में, इसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के साथ इस पर बड़े विस्तार के साथ विचार किया। अनेक नई जानकारियां हमारे सम्मुख उपस्थित हुई। लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, वायु पुराण, इन पुराणों में हमें लकुलीश का उल्लेख मिलता है, जो कि 28वें अवतार थे भगवान शिव के। गुजरात में इनका जन्म हुआ माना जाता है तथा ये शैव सिद्धांत के प्रचारक थे। हठ योग तथा तंत्र विद्या के अभ्यास को प्रवर्तित करने के लिए इनकी प्रसिद्धि थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो लकुलीश के साथ जुड़ा हुआ है वह है लिंगायत संप्रदाय का। शिवलिंग का जहां तक महत्व है, शिव पुराण में शिवलिंग के आविर्भाव की बड़ी विस्तार के साथ कथा मिलती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद होता है कि कौन बड़ा है, और वो विवाद जब बढ़ता जाता है तो उन्हीं के मध्य में एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर उपस्थित होते हैं। उस ज्योतिर्लिंग के आदि और अनंत को खोजने के लिए दोनों चलते हैं। विष्णु ऊपर जाते हैं और ब्रह्मा जी नीचे आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने चंपा के पुष्प को साक्ष्य साक्षी बनाकर ये कहा कि मैंने इसका आदि प्राप्त कर लिया। तो इस अपराध का दंड भगवान शंकर उनको प्रदान करते हैं। ये कथा शिवलिंग के आविर्भाव की हमें शिव पुराण में प्राप्त होती है। दूसरा यह है कि पाशुपत सूत्र के रचयिता के रूप में लकुलीश का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे यहाँ माना जाता है। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर BR जी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस प्रतिमा पर विशेष प्रकाश डाला और कहा कि यह लगता है कि 3य शताब्दी ईस्वी की प्रतिमा है। जब बोधिसत्व की खड़ी प्रतिमाओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है तभी भगवान शिव की इस प्रकार की प्रतिमाओं का आविर्भाव हुआ और लकुलीश की प्रतिमा का विकास हुआ। आचार्य प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी, जिनका संपूर्ण जीवन पुरातात्विक साक्ष्यों तथा साहित्यिक साक्ष्यों के अन्वेषण में ही समर्पित है और आपके अनेक महत्वपूर्ण व्याख्यान भारत अध्ययन केंद्र के अंतर्गत हुए हैं, आपने इस प्रतिमा पर विशेष स्लाइड्स के माध्यम से विशेष जानकारियां प्रस्तुत की। आपका वक्तव्य ही था लकुलीश कुछ नवीन तथ्य। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर आपने इस मूर्ति की समीक्षा की और विशेषकर JN बनर्जी जी के डेवलपमेंट ऑफ इंडो आइकोनोग्राफी के आधार पर यह माना कि निश्चित ही इस प्रतिमा के साथ कुछ तोड़-फोड़ की गई होगी। मुझे याद आता है मंदसौर की घटना का कि मंदसौर में हमें अष्टमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो वहां मंदिर में प्रतिष्ठित है। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कालिदास ग्रंथावली का प्रकाशन किया जा रहा था पूज्य पिताजी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, तो हम लोग मंदसौर गए और वहां से अष्टमूर्ति शिव की उस प्रतिमा का चित्र लेकर आए थे। तो उसका इतिहास मालूम चला कि मुसलमानों के आक्रमण के समय गांव वालों ने उस प्रतिमा को नदी में
एक तरह से सिरा दिया, नदी में एक तरह समर्पित कर दिया, और बहुत दिनों तक उस प्रतिमा को एक पत्थर के रूप में वहां पर लेकर उसके ऊपर कपड़े इत्यादि धोए जाते थे। लेकिन बाद में जब उसमें चेहरा दिखाई दिया तो उस प्रतिमा को निकाला गया, तो वह अष्टमूर्ति शिव की प्रतिमा थी। 4 मुंह उसके गढ़े हुए थे, लेकिन 4 मुंह उसके गढ़े नहीं हुए थे। और बादामी पत्थर की प्रतिमा जिसमें सफेद धारियां थी, ऐसा लगता था कि भगवान शिव का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। उस अद्भुत प्रतिमा का चित्र लाकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित कालिदास ग्रंथावली के ऊपर हम लोगों ने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से आक्रमणों से इन प्रतिमाओं के रक्षण का एक बड़ा प्राचीन इतिहास है, जो कि मंदसौर में रखी हुई अष्टमूर्ति शिव की प्रतिमा से स्पष्ट प्रतीत होता है। तो ऐसे ही कोई आक्रमण के समय लगता है कि इस प्रतिमा को भी इस प्रकार से रखा गया होगा कि ये सुरक्षित रहे और भविष्य के लिए उपलब्ध हो सके। और शीघ्र ही विगत 12 दिसंबर को हमारे सम्मुख यह प्रतिमा प्राप्त हुई, और आज भारत अध्ययन केंद्र को इस महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी का अंग बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तीनों विद्वान वक्ताओं डॉक्टर बिहारी लाल चौधरी जी, डॉक्टर संजय मंजुल जी, डॉक्टर उमेश चंद्र द्विवेदी जी, आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बी.आर. मणि जी तथा आज के अध्यक्ष प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी के प्रति भारत अध्ययन केंद्र, हेरिटेज सोसाइटी पटना तथा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की तरफ से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप सब ने हमारे निवेदन को स्वीकार कर अपने महत्वपूर्ण वक्तव्यों से इस सत्र को, इस विचार गोष्ठी को सफल बनाया और अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों से हमको परिचित कराया। इस संपूर्ण आयोजन के लिए मैं भारत अध्ययन केंद्र के सेंटेनरी विजिट फेलो डॉक्टर ज्ञानेंद्र राय जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस संगोष्ठी का प्रस्ताव किया और भारत अध्ययन केंद्र को इससे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक विद्वान जो कि निरंतर 2 घंटे से इस सत्र के साथ जुड़े रहे, विद्वान वक्ताओं के वक्तव्यों को सुना और अपने कमेंट्स बीच बीच में चैट बॉक्स में देते रहे, उन सभी विद्वानों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और अंत में अत्यंत कुशल संचालन के लिए हेरिटेज सोसाइटी के जो संचालक महोदय हैं, उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your blessings. On behalf of Heritage Society, also express my deepest gratitude to all our distinguished speakers, our chairperson, Professor Deenbandhu Pandey, sir, our chief guest, Dr. B.R. Mani, sir, our distinguished speakers, Dr. S.K. Manjul, sir, Dr. B.L. Chaudhary, sir, and Dr. Umesh Chandra Dwivedi, sir, for your very thoughtful presentations and lectures. I also convey my deepest gratitude and thanks to Dr. Ananta Asutosh Dwivedi of Heritage Society, our Director General, sir, and Dr. Gyanendra Rai, sir, from Banaras Hindu University, for their continuous support in organizing this lecture series. Once again, my many thanks to Tilka Manjhi Bhagalpur University and Bharat Adhyan Kendra, Banaras Hindu University, Varanasi, for your continuous support and for your encouraging words and your supports in organizing this series. Also, at the end of this session, it is very important to thank Sri Dinesh Kumar Gupta ji, sir from Bhagalpur, who has did hard job, and he did wonderful job regarding the academic awareness of these sculptures and has continuously brought these sculptures on the different public domains in the academic discipline. So thanks to one and all. Thank you to everyone. Thank you to all our speakers, our chairperson, our chief guest, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Heritage Society, all members, Asutosh, for providing all of lot of photographs, and thanks, pranam सभी लोगों को
मनीष सर को, चौधरी साहब को, द्विवेदी जी को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।